So in our today's lecture, we will discuss about the another scientific phenomena which is very important in the plants. That is imbibition. Okay, imbibition is the another type of diffusion. My voice is clear now? Yes, sir. Yes, give confirmation. Yes, sir. Imbibition is the another type of diffusion. ठीक है, imbibition भी एक तरह का diffusion ही है. It means something is moving from their higher concentration to the lower concentration, and in the imbibition particularly the water is moving from its higher concentration to the lower concentration. See, if the water is moving, then why are they are not calling it as a osmosis? अगर water ही move कर रहा है, means solvent ही move कर रहा है from their higher concentration to lower concentration, so it could be a osmosis, but every time it is not a osmosis because it is not necessary that the membrane will be present between these two systems. अगर कोई cell है, it is acquiring water via cell membrane. It is having cell wall as well as the cell membrane. अगर cell membrane के through water आ रहा है, that is osmosis because two systems are separated by the semi-permeable membrane. But it is not necessary that in the imbibition the cells are living. Means अगर cells living नहीं है, cells अगर dead हैं, तो semi-permeable membrane नहीं होगी. The dead cell is considered as open system क्योंकि cell wall semi-permeable नहीं है. तो इसके through water open system की तरह ही आएगा from their higher concentration to lower concentration. So imbibition also occurs in the dead cell. That's why it is diffusion, not the osmosis. It's clear? Why imbibition is also a type of diffusion. Now we will particularly focus that what exactly is imbibition. So imbibition is a phenomena in which a solid surface absorb the water, absorb or sometimes absorb the water. A phenomena particularly in the plants in which a solid surface absorb the water or absorb the water from their higher concentration, where the water is present at higher concentration. Okay, so from that region or that place, this solid surface absorb the water or absorb the water. I think these two terms are very clear to you. What is adsorption? If this is a solid surface, what is adsorption? Yes, any one of you? Diksha, Sapna, what is adsorption? सर एडजॉर्प्शन तो जब कोई भी जो सोल्यूट होता है या कोई भी पार्टिकल होता है वो सरफेस के ऊपर अटैच होता है. Suppose this is the outer environment having humidity. Yes, you are right, Vijay. Okay, it is having the water particles, vapors of the water. This is the surface which is going under the process of imbibition. So it will acquire the water. The water will move from the environment, that is the higher concentration, to this solid surface which is lacking the water, does not having the water. If the water remains at the surface only, so it is also imbibition, but this is adsorption. In the imbibition also, the water can be absorbed also. Water can go beneath the surface into the deep levels. In the same phenomena, that is imbibition, water can also go beyond the surface. So in the imbibition, both adsorption of water as well as the absorption of water takes place. So very simply, that is the definition, that adsorption or absorption of the water by any solid surface in the plant is called imbibition. Okay, this solid surface which is absorbing or adsorbing the water is called adsorbent. देखिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. सीड कोट. This is seed coat. It is having embryo. The seed coat acquires water from the surroundings through the process of imbibition. Once the water are absorbed, this seed coat, the particles of the water that are being imbibed inside the seed coat, जो particles seed coat में आ गए through the process of imbibition, कौन से particle? Water के particles. Those water particles will exert a pressure. That pressure is called imbibition pressure. Due to that pressure, this seed coat breaks, and once the seed coat will break,
The embryo got a place to germinate. It will produce the plumule and the radicle that will form the new plant. So seed pod or the seeds are germinated through the process of imbibition, means by acquiring water. We all know that seeds germinate in the presence of water. So that is imbibition. Okay. Let's just talk about another example in everyday life. The doors. Doors during the rainy season got swollen. ठीक है, अगर आप खिड़कियों को खुला छोड़ देते हैं rainy season में, so what will happen that after the rainy season, if after suppose 1 month you will try to close that door or that window, that will swell और उसकी जो fitting होगी यानी वो बंद नहीं होगी. That fitting does not matches with the border. So why this happen? Because door is a solid surface having dead cells of the plant having wood. That dead surface also absorb the water, and due to the absorption it become swollen. Swollen means increase in volume. So these two are the examples of imbibition, and by definition it's a simple thing. The absorption or adsorption of the water by any solid surface in the plant is called imbibition. Clear? What is imbibition? Yes, students. Examples of the imbibition clear to you? Yes, please unmute yourself. बताइए. Yes sir. सर एक बार फिर से समझा दो. बेटे वेरी सिंपली imbibition क्या है? सॉलिड सरफेस में वाटर एक्वायर किया. इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन. दे आर एक्वायरिंग वाटर अलोंग विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ये भी पैसिव प्रोसेस है. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये सॉलिड सरफेस में ऑलरेडी सपोज वाटर हो, then also it will acquire water from the environment. No, if the water is more outside and less in the solid surface, so along the concentration gradient this water is absorbed inside this solid surface. इस solid surface पे ये water आ जाएगा. After the water come, these water molecules exerts a pressure which is called imbibitional pressure. Okay, as a result एक तो imbibitional pressure generate होगा. Second thing, इस सॉलिड सरफेस का वॉल्यूम इंक्रीज इन वॉल्यूम. दिस इज आल्सो अ सिग्निफिकेंट एंड नेसेसरी थिंग. जब भी इंबिबिशन होता है वॉल्यूम इंक्रीज होगा डेफिनेटली. ठीक है, और इंबिबिशन में प्रेशर भी जर्मिनेट होगा. एग्जांपल्स लाइक सीड जर्मिनेशन एंड स्वेलिंग ऑफ द डॉट्स. दीस आर द एग्जांपल्स ऑफ द इंबिबिशन. वी विल टॉक अबाउट सम टर्मिनोलॉजीज. कुछ टर्म्स इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं. वन इज द एब्जॉर्बेंट. ठीक है, वो सॉलिड सरफेस जिसमें वाटर आ रहा है उसको एब्जॉर्बेंट या पर्टिकुलरली इम्बिबेंट बोलते हैं. इम्बिबेंट, दैट सरफेस which is having water through imbibition. उस सरफेस को सपोज सीड है, दिस सीड इज इम्बिबेंट, दैट डूर इज इम्बिबेंट. ओके, दैट डूर इज आल्सो इम्बिबेंट. Okay, this is imbibent, this is imbibent. The solvent, everywhere I am talking about the water. Water is the main solvent in the plants. That solvent which is going to imbibe, that solvent which is going to imbibe on this surface is called imbibate. So here are the two words, the imbibate and imbibent. Imbibate, that solvent may be the water which is going to imbibe at this surface. Okay, and the surface itself is called adsorbent or the imbibent. So imbibent and imbibate. This thing is clear? Each and every student, what is imbibate? The water. And what is imbibent? Suppose the seeds or the doors or any other solid surface in which the imbibition will going to occur. Clear है? Yes sir.
Yes, each and everyone. Mehak, Sapna, Ashwini. Yes, sir. Okay. थर्ड सेम में एनाटॉमी पढ़ी है सभी ने? सीड कोट किसका बना होता है? सपोज कोई ग्रेन है, कुछ भी है, ठीक है, सीड है, टेस्टर टेकमैन। सीड कोट जो होता है थिक होता है, कौन से टिश्यू का बना हुआ है बेटे? बताइए भाई। चलिए, बहुत अच्छी बात। एनाटॉमी पढ़ चुके हैं ना आप लोग थर्ड सेम में? कौन कौन से टिश्यू होते हैं प्लांट में? यस, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। कोलेनकाइमा। चलिए बेसिक की बात करता हूँ। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। इफ इट इज थिक, इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, हार्ड पार्ट्स जितने भी होते हैं प्लांट के, दे ऑल आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। टू प्रोटेक्ट द सॉफ्ट पार्ट्स, एम्ब्रियो बिल्कुल सॉफ्ट है, सारी सेल्स मेरिस्टेमेटिक हैं। All of the cells are in embryo are meristematic in highly dividing stage because they are going to form the future plant by forming the plumule and the radicle, which are primary meristems. After the plumule and radicle, a complete stem will be formed. At the apex of stem, still there are meristematic tissues which are called shoot apical meristem. At the apex of the root, still there are meristematic tissues which are called root apical meristem. And in between them, there is a permanent root and a permanent stem. Okay, we will not talk about the anatomy. So I was talking that this is a very hard seed coat. Okay. This solid surface is going to imbibe. Please mute yourself. ठीक है, ये solid surface क्योंकि इसमें water बहुत कम है. It is having no water and in the outer environment seed तभी germinate होते हैं जब favorable conditions होती है. ठीक है, during this rainy season. अगर इस टाइम की बात करें तो बड़ो क्यों करे हुए हैं? इस टाइम ने चेंज क्यों करे हुए हैं? कि गूगल कीबोर्ड लगाऊं क्योंकि का तो कुछ नहीं उन्होंने लिखना ना जा रहा। During this season, the humidity or the water content in the air in the form of the vapors is very much. So seed coat will acquire water. This is imbibed. Water is imbibed. Okay. When they will absorb the water or adsorb the water, these water molecules, suppose ये dead cells है seed coat की, ठीक है, इनके अंदर water आ गया. This water will create a pressure. It is kind of a similar pressure like turgor pressure. ठीक है, ये पानी जो अंदर आया तो ये walls के ऊपर pressure लगा रहा है. It is also a turgor pressure. Imbibitional pressure जो है, it is a kind of turgor pressure. But इसके लिए exactly word हम क्या use करते हैं? Imbibitional pressure. क्योंकि ये pressure इन cells के अंदर कैसे बना? जब पानी आया, ठीक है, यानी जब imbibition हुआ. This pressure is called imbibition pressure. इस pressure से क्या होगा? Volume बढ़ जाएगा. Cell इतनी broad हो जाएगी. और जब हर एक सेल का वॉल्यूम बढ़ रहा है, चाहे वो टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम हो गया पूरे टिश्यू का. पूरा सीड कॉट क्या होगा? इंक्रीज होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा. तो दिस सीड कॉट, बिकॉज ये तो परमानेंट है, अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो बस्ट हो जाएगा ये. ठीक है, दिस सीड कॉट विल बस्ट एंड द एम्ब्रियो विल जर्मिनेट इनटू द एनवायरनमेंट. और एम्ब्रियो जो है वो जर्मिनेट कर लेगा. जब तक वाटर नहीं मिल रहा, जब तक अनफेवरेबल कंडीशन है, सीड कोट बचाए हुए हैं एम्ब्रियो को, ताकि अनफेवरेबल कंडीशंस में एम्ब्रियो जर्मिनेट होकर खराब ना हो जाए. ठीक है, क्योंकि वाटर तो एसेंशियल है ना. ठीक है, सो दिस थिंग, द इंक्रीज इन प्रेशर बाय द इंबिबिशन इज कॉल्ड इंबिबिशनल प्रेशर. एवरी प्रेशर हैव अ पोटेंशियल. ठीक है, इंबिबिशन प्रेशर को मैट्रिक्स पोटेंशियल भी बोला जाता है. मैट्रिक्स पोटेंशियल. टर्गर प्रेशर का पोटेंशियल क्या था भाई, बता सकता है कोई स्टूडेंट? टर्गर प्रेशर के लिए पोटेंशियल क्या होता था? यस, एनीवन ऑफ यू? अश्विनी, निशा,
सुजाता, ऑस्मोटिक। जब टर्गर प्रेशर एक्साइटेड है तो इस प्रेशर को तो हम टर्गर प्रेशर बोल रहे हैं, इन मॉलिक्यूल्स की कैपेसिटी को, ठीक है, जो टर्गर प्रेशर लगा रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल, इनकी कैपेसिटी को हम बोलते थे प्रेशर पोटेंशियल। आया यार? इसको हम क्या बोलते थे? प्रेशर पोटेंशियल। ऐसे ही इम्बिबिशन प्रेशर के पोटेंशियल को हम बोलते हैं मैट्रिक्स पोटेंशियल। ऑस्मोटिक प्रेशर या सॉल्यूट प्रेशर, इसके पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर या सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर के पोटेंशियल को हम बोलते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू 5 पास्कल्स है तो सॉल्यूट पोटेंशियल होगा -5, ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी होगा -5। अगर टर्गर प्रेशर 7 पास्कल्स है तो प्रेशर पोटेंशियल होगा -7। अगर इम्बिबिशनल प्रेशर 8 है तो मैट्रिक्स पोटेंशियल होगा -8। Now this thing is clear to you. We represent the pressures and potentials also. The capacity of molecules to imbibate are the matrix potential, and capacity of molecules to exert pressure is imbibitional pressure. Clear? What is imbibitional pressure? The pressure exerted by the water molecules upon the process of imbibition. Clear है बेटे? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Antika, roll number 4. Clear है बेटे? Okay. Unmute करके बता दिया करिए, चैट में मत बताया करिए बेटे, चैट में देख नहीं पाता during the... Okay. सर I am repeating the pressure. जिस सरफेस पे इम्बिबिशन हुआ, ठीक है, इस सरफेस में वाटर मॉलिक्यूल आ गए तो इनके आने की वजह से इंक्रीज इन वॉल्यूम हुआ। पहले सेल इतनी थी, अब इतनी हो गई, तो ये इंक्रीज इन वॉल्यूम हुआ एक प्रेशर की वजह से। इम्बिबिशन होने की वजह से जो प्रेशर लगा सेल के ऊपर, ठीक है, और इम्बिबिशन होने का मतलब पानी आने की वजह से, वाटर आने की वजह से जो प्रेशर लगा उसको हम बोलते हैं इम्बिबिशन प्रेशर। इस प्रेशर की वजह से ही सेल बढ़ रही है, इस प्रेशर की वजह से ही सेल बस्ट भी हो जाएगी, ठीक है। Now let's just discuss about some factors. Imbibition को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लाइक टेक्सचर ऑफ द इम्बिबेंट, ठीक है। इम्बिबेंट का टेक्सचर, इम्बिबेंट मींस जहां पे, व्हाट इज इम्बिबेंट? दैट सॉलिड सरफेस जहां पे इम्बिबिशन होगा। अगर वो बहुत कॉम्पैक्ट है, if it is very compact or it is loose, so what should be the imbibition? कहां पे ज्यादा imbibition होगा? एक compact surface में, compact means जिसमें molecules highly compact है, condensed है एक दूसरे के साथ, this is compact, okay, this one is loosely arranged. One is loosely arranged, second is compact. कौन से केस में ज्यादा इम्बिबिशन होगा बेटे? बताइए, यहाँ पे ज्यादा होगा या यहाँ पे ज्यादा इम्बिबिशन होगा? यस, सेकंड केस में। ये सपना कह रही है सेकंड में। एनीवन एल्स? सर लूज में होगा ज्यादा इंडिविजुअल। देखिए वाटर आ रहा है बेटे, यहाँ पे वाटर आया तो एज ए स्टेट ऑफ मैटर भी आप पढ़ते हैं, सॉलिड जो होता है कॉम्पैक्टली अरेंज, तो यहाँ पे स्पेस है ही नहीं वाटर आने के लिए, ठीक है, ना तो इंटरसेलुलर स्पेस है, सेल्स को एक्सपेंड होने के लिए भी स्पेस नहीं है, बिकॉज दे आर वेरी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। सेल्स एक्सपेंड होके जाएगा तो वो क्या करेंगे? डिस्प्लेस करते जाएंगे उस वाटर को जो आना चाह रहा है, कम आने देंगे। लूज में क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस में घुस जाएगा वाटर,
यानी एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। सेकंड थिंग, जब सेल्स के अंदर भी जाएगा और सेल्स एक्सपेंड होंगी तो साइड में गैप अवेलेबल है, यानी वाटर का डिस्प्लेसमेंट कम से कम होगा। ये चाहेंगे नहीं कि पानी वापस जाए, ये वापस आएगा पानी तो भी उसको वापस भेजना चाहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर लूज सरफेस है, टेक्सचर जो है लूज है, तो वहां पे इंडिविशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दी कॉम्पैक्ट वन। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, जो लूज जो आपका टिम्बर है, जो लकड़ी होती है जिसमें गैप है, ठीक है, वहां पे ज्यादा इंडिविशन होता है। ठीक है, और डोर्स और या जो विंडोज हमारे घर में होते हैं, दे आर वेरी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, उनमें कम स्पेस होता है, तो इसलिए उनमें थोड़ा बहुत इंडिविशन होगा। सीड पॉट में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, इसलिए वहां पे ज्यादा इंडिविशन होता है। ठीक है, सो हाउ द टेक्सचर अफेक्ट्स, क्लियर? This factor is considered in each and everything. टेम्परेचर तो हम सब कहीं बात करते हैं, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा इंडिविशन पे? देखिए, जितने भी फिनोमेना होते हैं मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में जनरली 20 to 50 डिग्री में इंक्रीज ही होता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है, बढ़ रहा है, तो इंडिविशन भी बढ़ता है। ठीक है, बेशक इंडिविशन ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, बट इट डजंट मीन कि ह्यूमिडिटी कोल्ड एनवायरनमेंट में ही ज्यादा है। समर्स में भी तो ह्यूमिडिटी होती है बेटे, तो ह्यूमिडिटी से मतलब हमारा वाटर वेपर्स का कंटेंट है एयर में। ठीक है, एट ए पर्टिकुलर टाइम, if we talk about the content of the vapor in terms of the volume, that is called relative humidity। तो relative humidity की टर्म्स में हम बात करते हैं, तो टेम्परेचर जो है अगर बढ़ता जा रहा है तो इंडिविशन भी बढ़ता है, बट अप टू अ रेंज। 50 से ज्यादा अब आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वो वेपर्स क्या होंगे, आपके जो है वेपर स्टेट में रहेगा ही नहीं वाटर। ठीक है, ह्यूमिडिटी जो है आपकी डिसअपीयर हो जाएगी, इस वजह से आपका इंडिविशन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो टेम्परेचर इंक्रीजेस द इंडिविशन। पीएच की अगर बात करें, ठीक है, तो पीएच भी बेटा डिपेंड करता है डिफरेंट सबस्ट्रेट्स पे। ठीक है, सपोज अगर आपका जो सरफेस है उसमें प्रोटीन्स ज्यादा है तो ज्यादा इंडिविशन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड्स अगर है, विजिबल नहीं होगा यहाँ, अगर कोई चीज है उसमें लिपिड और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है तो वहां पे कम होता है इंडिविशन एज कंपेयर टू प्रोटीन्स। जहां पे प्रोटीन्स होते हैं ना, वहां पे इंडिविशन ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे ग्राम आपने देखा होगा, ग्राम चना, जब हम इंडिविशन को एक्सपेरिमेंटली स्टडी करते हैं तो हम ग्राम की सीड लेते हैं। ठीक है, ग्राम की सीड के साथ हम क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम लेते हैं ग्राम की सीड्स, उनको सोक करते हैं वाटर में, कुछ टाइम के लिए उनको वाटर में हम सोक कर देते हैं। इससे क्या होगा कि उस वाटर को एक्वायर कर लेगा सीड, सीड विल एक्वायर दैट वाटर, एब्जॉर्ब कर लेगा या एब्जॉर्ब कर लेगा। चने का जो सीड है, ग्राम जो है, दे विल हैव द वाटर, सपोज एब्जॉर्ब किया तो सरफेस पे। ठीक है, फिर हम इन जो ये जो सीड है इनको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस से कवर कर देते हैं, इनको वेरी शार्पली या वेरी टाइटली हम प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। अब 2 से 3 दिन के बाद क्या होगा, पानी क्योंकि एब्जॉर्ब किया था उसकी वजह से इसके अंदर क्या जनरेट होगा, इंबिबिशनल प्रेशर। जैसे ही इंबिबिशनल प्रेशर एक्टिव हो जाएगा, वो प्रेशर इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को रप्चर कर देगा, और जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस रप्चर होगा, आप देखेंगे कि अंदर से एम्ब्रियो जर्मिनेट हो चुका, यानी सीड कोट क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ओके, तो ग्राम में प्रोटीन ज्यादा होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू एनी अदर सीड, लाइक इफ आई टॉक अबाउट व्हीट, व्हीट इज द मेंबर ऑफ फैमिली पोएसी। अनाज जितने भी होते हैं ना, मोनोकॉट, ठीक है, व्हीट, राइस और पिनसेटम लाइक बाजरा जो आपका, वो भी आपका पोएसी का मेंबर है। उनमें आपके कार्बोहाइड्रेट और लिपिड ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू प्रोटीन। ग्राम जो कि डायकॉट है, फैमिली फैबिएसी, ठीक है, फैबिएसी का मेंबर है, इसमें प्रोटीन ज्यादा होते हैं, इसीलिए हम ग्राम को यूज करते हैं, इनमें इंडिविशन ज्यादा होता है। क्लियर है ये पॉइंट? So here are total 3 factors: the texture, temperature and the pH or the substrates. ठीक है, इनके ऊपर भी डिपेंड करता है इंडिविशन। This is clear? Yes, sir. Now let's just talk about the applications or the significance of the inhibition.
विपिन है क्लास में? विपिन, so anyone else, any significance of imbibition? एक सिग्निफिकेंस तो बेटा मैंने डिस्कस कर ही लिया अभी आज की क्लास में, ठीक है? प्लांट्स की क्या सिग्निफिकेंस है? बोलते नहीं है, पता सबको है। सीड जर्मिनेट किस वजह से हो रहा है? मीटिंग जब एंड हो जाए तो दोबारा ज्वाइन कर लेना बेटे, ठीक है? 40 मिनट्स होने पे एंड हो जाएगी। मैं लिंक दोबारा शेयर नहीं करूंगा, सेम लिंक रहेगा, दोबारा ज्वाइन कर लेना। देखिए, ब्रेकिंग ऑफ सीड कोर, दैट्स व्हाट आई हैव डिस्कस्ड इन द सेम लेक्चर। आज ही बताया कि सीड जर्मिनेशन प्लांट में किस वजह से होता है? इम्बिबिशन की वजह से। some accountability of the imbibition is also in transport of water. प्लांट में अप टू वेरी लेस हाइट, सपोज 1 to 2 फीट, 1 से 2 फीट की हाइट तक ये स्टेम है, इसमें वाटर आ गया यहाँ जाइलम में, वाटर को अपलिफ्ट करना है। ऑल्दो वाटर अपलिफ्ट होता है स्टेम में ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से, बट 1 to 2 फीट वाटर कैन आल्सो बी ट्रांसपोर्टेड विद द इम्बिबिशन। तो कुछ टिश्यूज तक, ठीक है, जैसे रूट प्रेशर लेके जाता है ना पानी को अप टू 25 to 30 फीट, कुछ फीट तक 1 to 2 फीट ओनली कैन बी ट्रांसपोर्टेड वाया इम्बिबिशन in the plants. Okay, प्लांट्स में ह्यूमिडिटी जो एब्जॉर्ब होती है, कभी कभी स्टेम को, रूट को ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, दैट ह्यूमिडिटी इज आल्सो एब्जॉर्ब्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इम्बिबिशन। ओके, एक फंक्शन और है इसका, फोर्थ वन, इनॉस्कुलेशन। क्या होता है बता सकता है कोई? इनॉस्कुलेशन क्या होता है? एनिमल्स में बहुत कॉमन है, ह्यूमंस में कॉमन है, सॉरी एनिमल्स में नहीं। जब प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, एक जगह का कोई टिश्यू रिमूव करके दूसरी जगह पे लगाते हैं, उसको इनॉस्कुलेशन बोलते हैं ह्यूमंस में। प्लांट्स में इनॉस्कुलेशन का मतलब है जब दो चीजें एक साथ ग्रो करती हैं। जनरली ट्रेडिशनली कहा जाए तो कई बार आपने देखा होगा दो केले एक साथ आते हैं, शिव पार्वती बोला जाता है, ठीक है? माइथोलॉजीज में जब दो चीजें एक साथ आती हैं तो हम कहते हैं ना ये शिव पार्वती, जनरली इनको मत खाना। इनॉस्कुलेशन में प्लांट में इनॉस्कुलेशन का मतलब है सपोज दो स्टेम एक साथ ग्रो कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा कब होता है? ये एक तरह की ग्राफ्टिंग ही है, जब किसी प्लांट का जो ग्रोथ है वो दूसरा प्लांट के नजदीक चला जाए और इनका कैम्बियम आपस में टच हो जाए। कैम्बियम जो कि एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है, जब ये आपस में टच हो जाते हैं तो ये दोनों प्लांट्स एक साथ ग्रो करने लगते हैं। इस तरह के प्लांट्स में जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है ना बेटा, वो इम्बिबिशन के थ्रू होता है, ठीक है? इस तरह के प्लांट्स में वाटर एब्जॉर्प्शन, अगर दो रूट एक साथ ग्रो करें तो इन रूट्स का सेपरेट वाटर एब्जॉर्प्शन है, साथ ही साथ बीच वाले सरफेस में इम्बिबिशन के थ्रू भी वाटर क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। इन कपल्स को बोला जाता है गैमल्स, GEMELS। जब दो चीजें प्लांट में एक साथ ग्रो करती हैं उसको बोला जाता है गैमल्स। ओके, व्हाट इज इनॉस्कुलेशन, व्हाट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, व्हाट इज ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब्ड एंड व्हाट इज सीड जर्मिनेशन, that all achieved due to the process of imbibition. So these are some significances of the imbibition.